Hello, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. All right. So this side Kajal is here, right? So, uh, first of all, there are going to be like so many other people also who are going to join, right? Like I think more than 20 students are there. Yes, ma'am. Around Yeah, 20. around 20. Yes, ma'am, All right. around 20. तो till the time they're joining, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. That is what you people know in system design right now, what you people know about Commvault interviews, right? So these kind of simple questions let us discuss. And तब तक वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे. तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों पर सर्च किया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग आई वुड लाइक टू नो. Anyone? What type of questions do they ask in system design? Any idea? Ma'am, till now I have searched means questions like I have seen the means previous year questions of Commvault. Then I have Mm-hmm. searched related to file systems and Right. also like creating the means OOPS related problems in which we apply the concepts of OOPS. So basically that problems I have tried. Okay. Yes, So ma'am. आप लोगों ने already system design cover करा हुआ है, isn't it? Yes, Is ma'am. it so? Partially we have done that. Partially you have done. So have Yes. you done like some sort of like problems as well? Mm, Problems in the sense like designing problem? we You have can be means completely like hello. There मतलब was अभी तक. some discussions about it, but not a solid question. ऑलराइट, तो डिजाइन्स में अभी तक आपने एलएलडी के स्पेशली बिकॉज एज अ फ्रेशर जनरली LLD is mostly asked in any of the companies, right? But we will focus on HLD as well. तो अगर मैं LLD की बात करूं तो उसमें आप लोगों ने कोई डिजाइन अभी तक किए हैं किसी भी टाइप के सिस्टम्स के? We have not done ऑलराइट. completely. We have taken like problem statements, means problems, and we have designed some of the functions of it. We have practiced one questions of Hogwarts problem in which we have to maintain a game of keeping the players in the house and upgrading the means exiling the current players and promoting some players and conducting battles between them. In that way, I can say that. ऑलराइट, सो ये आप लोगों ने क्लास में किया हुआ है प्रॉब्लम? Yes. ओके. सो कुछ इसी तरीके के देखो, अब एलएलडी में बेसिकली दे आर गोइंग टू आस्क सम सॉर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली. और चाहे कॉमवर्ट हो चाहे कोई भी कंपनी हो, दे बेसिकली आस्क यू अ लॉट ऑफ इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चंस, है ना? मतलब वो आपकी डेप्थ देखना चाहते हैं दैट हाउ मच एक डीपर पर्सपेक्टिव आपका कैसा है, right? So what I know is that you already have covered like the basic concepts already, right? अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सब चीजों के ऊपर ऊपर फोकस करना है. And then you people want, obviously the end goal is very much clear that we want to clear that round, right? In which they are going to make you to sit for like hours and they're going to ask you a lot of questions. So उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो बड़ा ही क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन प्रॉब्लम, है ना? पहले एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. और जिस तरीके की हमारा सपोज लेवल रहेगा, so if we will feel that yes we are comfortable with this question, then in the next session we'll increase the level. और otherwise अगर हमें लगेगा कि नहीं अभी फिलहाल हमें ये नहीं समझ में आ रहा है तो we'll decrease the level, that is we'll cover some sort of like core concepts as well, right? तो based on today's session we are going to decide on this factor कि हमें कौन सी direction में जाना है. Feel okay everyone?
सही है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, all right, guys. So, now let us start with. So, I'm going to share my screen. आप लोग मुझे बता देना एक बार if it is visible. Is it visible? Yes, ma'am, it is visible. All right. So, let us first of all understand कि system design होता क्या है, and then we'll go to a like problem statement, right? So, system design basically बच्चों होता ये है कि we are trying to design a system, isn't it? So, system design is basically that we are trying to design a system. Now, what is this system, right? The system is basically any of your application or any of your system in actual as well. ठीक है, जो कि होल सोली क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उनकी क्वेरीज को, उनके रिक्वेस्ट वगैरह को प्रोसेस कर रहा है, इट इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू देम, राइट? सो बेसिकली इसके पास दो फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना है। एक आपके पास आपका क्लाइंट है और एक आपके पास अपना सिस्टम है, राइट? तो दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्लीट आर्किटेक्चर जिसके बिहाफ पर आप सोचते हो कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। तो देयर इज वन क्लाइंट, राइट? वन इन द सेंस दैट देयर आर सेवरल क्लाइंट्स एंड देयर इज वन सिस्टम ऑन विच दीज क्लाइंट्स आर पुटिंग द रिक्वेस्ट, राइट? और इस सिस्टम का काम है कि इनको, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इनको रिस्पॉन्स देना, ठीक है? सो क्लाइंट्स आर बेसिकली गोइंग टू मेक सम रिक्वेस्ट एंड सिस्टम इज गोइंग टू मेक सम रिस्पॉन्सेज। तो बस इतनी सी चीज है आपका सिस्टम डिजाइन, राइट? अब सिस्टम अगर आप सोचते हो कि ठीक है, सिस्टम के बारे में हम सोच रहे हैं कि सिस्टम है क्या, तो सिस्टम आपका एक वेंडिंग मशीन भी हो सकता है, राइट? सिस्टम आपका एक एटीएम मशीन भी हो सकती है। सिस्टम कैन ऑल्सो बी लाइक फिजिकली हार्डवेयर भी हो सकते हैं, राइट? सो इट कैन बी अ लिफ्ट एज वेल, एलिवेटर, राइट? लेकिन जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर ही सिस्टम होने वाले हैं। ऑब्वियसली इन हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कोड, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यस दीज आर आल्सो सिस्टम्स, राइट? सिस्टम्स मींस क्या, इनको रिक्वेस्ट जाएगी और बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स। इन द सिमिलर वे देयर कैन बी सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज वेल दैट कैन वर्क एज अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो सकता है, राइट? उसके बाद आप बोलोगे फेसबुक इज ऑल्सो अ सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली एक ऐसी होल एंटिटी है जो कि हर टाइप के रिक्वेस्ट को, हर टाइप के, आप कह सकते हो, स्टेट्स को हैंडल करना जानती है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, दैट इज स्टेट्स, ठीक है? तो इसका मतलब है जो सिस्टम है, अब इनमें से कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है? वी आर नॉट वरिड अबाउट इट व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट इज, बट एनी ऑफ दी सिस्टम कैन स्टे इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स। एंड as a good designer we have to understand that what are these different states and how to handle it. Does it make sense, everyone? Yes, ma'am. राइट? Yes, सो ma'am. हमने यहाँ पर, हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, ये सिस्टम, अब जो भी सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, डजेंट मैटर, बट इट कैन रिमेन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स फॉर श्योर। ये तो सिस्टम किस में रहता है? डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी देखोगे ना, तो आपसे बोलेगा कोई भी स्टेट डायग्राम बनाओ, तो आप बोलोगे कि भाई हाँ, सबसे पहले तो रेडी स्टेट होती है, फिर वो रेडी के बाद कहाँ जाता है? रेडी के बाद सपोज रनिंग स्टेट होती है, उसके बाद एक वेटिंग स्टेट आ जाती है बीच में, राइट? तो इस तरीके से देर आर लाइक मेनी मेनी स्टेट्स, है ना? एक होती है आपकी न्यू स्टेट या स्टार्ट स्टेट बोल देते हैं। दिस इज दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो लिव इन, राइट? योर कंप्यूटर सिस्टम एज अ होल कैन लिव इन, राइट? सो इन द सिमिलर वे वी हैव टू डिजाइन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टेट्स फॉर एनी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? अब इसको अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं। तो क्या क्या तरीके किसी भी सिस्टम डिजाइन को अप्रोच करने के या उसके रिलेटेड स्टेट्स को अप्रोच करने के? सो आइदर यू आर गोइंग टू गो फॉर दैट इज हाई लेवल डिजाइन, है ना, एचएलडी, और यू आर गोइंग टू गो फॉर लो लेवल डिजाइन, ठीक है? तो लो लेवल डिजाइन में हम उसी सिस्टम के बारे में सोच रहे होते हैं, बट ऑन अ लोअर पर्सपेक्टिव, कि इसकी जो कोड डिजाइनिंग है वो कैसे करनी है, ठीक है? हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कोड आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, that whereas in HLD we are going to think about this system again, ये सिस्टम अभी भी सेम है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे कि यार मुझे ना शायद से क्यूज की जरूरत पड़ सकती है, मुझे शायद से लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज के बारे में हम सोच रहे होते हैं, दैट व्हाट ऑल रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड।
राइट, उनको किस तरीके से प्रोग्राम करना है, दैट कम्स इन द LLD, that is low level design, because you are basically doing code there, right? So that is the simplest of the difference that you can find out in between HLD and LLD, and this we know as well, right? यहाँ तक हम लोग सब clear हैं, isn't it? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कि जो भी अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, वट एवर, राइट? सो मतलब अगर सपोज हम HLD की बात करते हैं, तो अब हमारा काम है कि ये डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, कब किसका यूज किया जाता है, उसे इन अ सिस्टम वी हैव टू अंडरस्टैंड। वेर एज इन LLD वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, राइट, सो वट एवर इट मे बी, राइट, तो उन सबको किस तरीके से अप्लाई करना है टू जनरेट अ वेरी गुड कोड। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम को लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सिस्टम की स्टेट्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट वन मोर थिंग, दैट द कोड शुड बी वेरी क्लीन एंड कॉन्साइज एंड मतलब सारे आपके सॉलिड के प्रिंसिपल्स हो या जो भी डिफरेंट आप लोग रूल्स फॉलो कर रहे हो, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यू हैव टू राइट अ वेरी रोबस्ट कोड। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट दैट इज लाइक वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैव टू अप्रोच। क्योंकि इसी के जैसा जब अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप लोग अपने किसी भी प्रॉब्लम को एटलीस्ट बहुत आराम से अप्रोच करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज हमें क्लियर रखनी है कि जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, इसके अंदर भी जितने ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल्स कवर कर पाएंगे, उतना बेटर हमारा अंडरस्टैंडिंग बनता जाएगा। राइट, सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें इंटरव्यूअर बोलता है कि यार आप ना एक वेंडिंग मशीन डिजाइन करके दिखा दो, तो सिंपल है, वेंडिंग मशीन है ना, और इंटरव्यूअर ने बोला है कि आपको इसका LLD, दैट इज लो लेवल डिजाइन, मुझे करके दिखाना है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, इज इट क्लियर? वेंडिंग मशीन क्या होती है बच्चों? Yes, ma'am. वेंडिंग मशीन क्या होती है? जो जूस या फिर उसको परचेज कर सकते हैं प्रिंट मटेरियल राइट, तो ऑटोमेटिकली। वेंडिंग, हाँ मतलब वेंडिंग मशीन सबको पता है हमें कि वेंडिंग मशीन क्या होती है, कि एक मशीन होती है, उसके अंदर यू कैन, मतलब अब तो वेंडिंग मशीन हर चीज के लिए लग जाती है ना, अब तो टोकन्स भी निकाल सकते हैं मेट्रो के अंदर। तो वेंडिंग मशीन होती क्या है? तो वेंडिंग मशीन इज बेसिकली a machine which is having a lot of products with it, है ना। तो उसके अंदर कोक वगैरह पहले वाले जमाने में ज्यादा होती थी, है ना, अभी भी होती हैं ऑफिसेस वगैरह में, तो चिप्स वगैरह, कोक वगैरह, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं इसके अंदर। एंड देन यू हैव टू इंसर्ट अ कॉइन और समथिंग, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डिस्पेंस होके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसा ही होता है वेंडिंग मशीन, है ना। सो दिस इज आवर यस मैम। वेंडिंग मशीन, राइट। अब हम इस सिस्टम के बारे में सोचना चाहते हैं, तो सबको इंटरव्यूअर ने हमें बोल दिया कि यार आप मुझे एक वेंडिंग मशीन बनाकर दिखाओ। ठीक है, अब उसने बड़ा ही वेग सा स्टेटमेंट पास कर दिया, वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछना है कि ठीक है, वेंडिंग मशीन हमें समझ में आता है, हमें क्या क्या समझ में आता है उसके बारे में। लेट अस राइट सबसे पहले वो सारी चीजें, तो हम बेसिकली उसके दिमाग में क्या है वो तो हमें पता नहीं है। सो वी हैव टू basically form all of our जो points हैं in such a way that we are basically showing him also कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, एंड साथ बाय साथ के साथ हम उससे पूछ भी रहे हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट, राइट। तो हम लोग सबसे पहले डिजाइन करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन द वेंडिंग मशीन। तो हमने बोला कि देखो वेंडिंग मशीन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द वेंडिंग मशीन। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर वन। एंड द सेकेंड पॉइंट भी स्टेटेड कि इसके अंदर मल्टी, अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हमारे पास एक कंफ्यूजन आ गया कि ये सिंगल टाइप के प्रोडक्ट को रखने वाला है या फिर ये मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट को रखने वाला है। ठीक है, सो दिस इज आर कंफ्यूजन नंबर वन। वी आर जस्ट राइटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, एंड जो भी हमारा कंफ्यूजन है वो भी हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं। राइट, सो दिस इज फर्स्ट थिंग, दैट इसके अंदर प्रोडक्ट्स रहते हैं, पर सिंगल टाइप का प्रोडक्ट है या मल्टीपल टाइप का प्रोडक्ट है, स्टिल वी आर नॉट अवेयर। राइट, देन द सेकेंड थिंग इज कि अब इसके अंदर कॉइन्स डाल रहे हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ 5 रुपी का कॉइन डाल सकते हैं, विच इज कि हम लोग किस टाइप का सिस्टम पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इज इट अ कॉइन बेस्ड सिस्टम, राइट, और इज इट अ कार्ड बेस्ड सिस्टम, और इज इट अ UPI बेस्ड सिस्टम, तो किस टाइप का सिस्टम है। अगर हमारा
जो इंटरव्यूअर है वो बोलता है कि भाई आपको ना पूरा डिस्प्ले दिया जाएगा एंड आप उसमें से कुछ भी मतलब सिंपली वो कॉइन वाली मशीन नहीं है, यू आर गिवन विद अ डिस्प्ले काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें से आप यूपीआई वगैरह भी स्कैन वगैरह भी कर सकते हो एंड यू कैन एंटर योर डिटेल्स ऑफ द कार्ड्स एज वेल। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली दिस इज अगेन अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क द इंटरव्यू कि कैसे टाइप की वेंडिंग मशीन है, क्या वो सिर्फ कॉइन बेस्ड वेंडिंग मशीन है या उसके अंदर कार्ड्स वगैरह भी चल जाते हैं या फिर वो क्यूआर भी एक्सेप्ट करती है। तो विच टाइप ऑफ वेंडिंग मशीन इज इट क्लियर, इज इट राइट क्वेश्चन और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Why is it a correct question? Because we are asking the requirements means. क्योंकि हम एलएलडी, यस एग्जैक्टली है ना, क्योंकि हम एलएलडी की बात कर रहे हैं, राइट। अगर कार्ड बेस्ड होगा तो हमें ऑब्वियसली उसके जब भी आप लोग किसी कार्ड की डिटेल एंटर करते हो तो आप लोग उसके अंदर डेट मंथ जो एक्सपायरी वगैरह का होता है, कार्ड नंबर होता है, सो डिफरेंट एंट्रीज यू वांट, राइट। अगर कार्ड वगैरह आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से अपना क्लास बनाना पड़ेगा कि अगर भाई क्यूआर वगैरह का सिस्टम है तो उसको हम अलग तरीके से स्टोर कराने वाले हैं। तो क्योंकि आप एलएलडी की बात कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड द सिस्टम, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस सेकंड पॉइंट आल्सो वी हैव टू क्लियर इट विद द इंटरव्यूअर, ठीक है। फिर वो हमें बता देगा कि कैसे टाइप की उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि मतलब अभी हम सोच रहे हैं ना, क्योंकि वेंडिंग मशीन के अंदर और क्या क्या हो सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि ये वेंडिंग मशीन किस किस स्टेट में रह सकती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसके अंदर कॉइन डाला, ठीक है। आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसके अंदर कॉइन डाला, ठीक है। अब कॉइन डालने के बाद ऐसा तो है नहीं, या फिर सबसे पहले चलो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, स्क्रीन दिख रही थी हमें तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सपोज पैसे दिखाने लग गए कि भाई मुझे 30 रुपए यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे इफ आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो थर्ड केस आ जाता है कि आप जितने भी अमाउंट वेंडिंग मशीन के अंदर डाल रहे हो, राइट नाउ वी आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस। तो हमारा प्रोसेस क्या है? बेसिकली सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्राइस हमको दिखने लग गया है। प्राइस को दिखने के बाद हमें अब वो कॉइन्स वगैरह एंटर करने हैं, तो वॉट एवर हमारा जो भी पेमेंट का मेथड है उसके हेल्प से हमें कॉइन्स एंटर करने हैं या पेमेंट करनी है। एंड देन वो वाला जो आइटम है वो डिस्पेंस हो जाएगा, दैट इज वो हमें मिल जाएगा। तो आइटम डिस्पेंस्ड, यही यही प्रोसेस होना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का, गाइस। Yes, ma'am. यस मैम। यही प्रोसेस होना चाहिए ना कि एक प्रोडक्ट, सबसे पहले आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, देन यू सेलेक्ट की उतने प्राइस, मतलब प्राइस आता है आपके सामने, देन कॉइन्स आप उसके अंदर डालते हो एंड देन आइटम डिस्पेंस हो जाता है। सो इसके बेसिस पे इफ आई थिंक अबाउट द स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि अब मुझे पूरा का पूरा स्टेट डायग्राम बनाना है आगे चलकर, बिकॉज एलएलटी की बात चल रही है तो इसलिए आई एम थिंकिंग अबाउट इट, राइट। सो आई विल टेल द इंटरव्यू दैट दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच द मशीन कैन बी, राइट। तो कौन कौन सी स्टेट है, तो आई एम टेलिंग हिम, ठीक है, कि एक तो स्टेट हो सकती है कि इनिशियल स्टेट जिसमें वेंडिंग मशीन कुछ भी नहीं कर रही है, एकदम खाली बैठी हुई है, राइट, जिसमें आपको प्रोडक्ट वाला पेज सामने दिखाई दे रहा है कि भाई सेलेक्ट कर। ऐसे ही होता है ना जब आप लोग, या तो वेलकम का साइन होता है आइडियल स्टेट में, या फिर प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं, यही होता है। Yes, ma'am. बच्चों वी हैव टू डिसाइड ना कि क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं जिसके अंदर हमारी मशीन रह सकती है। तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहली स्टेट तो यही होगी ना कि मशीन आइडल होगी, मशीन के पास कोई काम ही नहीं है, इजंट इट, वो बस खड़ी हुई है, राइट। तो उस वाली स्टेट में मतलब हम ऐसा सोच लेते हैं कि उस वाली स्टेट में वो हमें प्रोडक्ट दिखा रही है। या फिर अगर आपको इस वाली स्टेट में भी प्रोडक्ट नहीं दिखाना तो आप आइडल स्टेट अलग से बना लो, उसके बाद बोल दो कि एक हो जाएगी आइडल स्टेट। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं। एक हो जाएगी आइडल स्टेट, राइट। उसके बाद एक हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले वाली स्टेट, तो डिस्प्ले डिस्प्ले वाली स्टेट। एक हो जाएगी आपकी कॉइन्स डालने वाली, दैट इज मनी एंटर करने वाली स्टेट, राइट। दीज आर डिफरेंट स्टेट्स इन विच दिस मशीन कैन लिव, राइट। और क्या स्टेट हो जाएगी? एक हो जाएगी वो डिस्पेंसिंग वाली स्टेट, दैट इज द लास्ट स्टेट। और कोई, और कोई स्टेट जिसमें ये मशीन रह सकती है? मैम एरर स्टेट। एरर स्टेट वो कब कब आएगा वैसे? सही है, पर एरर स्टेट में कब कब रह सकती है? मैम लेट से पेमेंट फेल है तब।
मतलब बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनकी वजह से एरर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग खुद भी सोचो कि वेंडिंग मशीन एरर स्टेट में कब कब जाएगी, और क्या ये जरूरी स्टेट है या नहीं है। मैम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, राइट। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो आप बोलोगे यार ये तो एरर है, राइट। और पेमेंट हो जाए पर सफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं डाले तो मैम वो वाला भी होगा एक। क्या, फिर से बताओ। सफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं डाले सो दैट वुड बी सफिशिएंट कॉइन्स कंसिडर्ड नहीं फॉर है, द ऑल एरर। राइट। मतलब सही बात है। मतलब उसने डिस्प्ले पर दिखाया कि भाई मुझे 30 रुपए चाहिए, और आप एंटर कर रहे हो सिर्फ 10 रुपए, और आप सोच रहे हो कि अब मुझे डिस्पेंस करके मिलेगा। लेकिन उसके लिए ना हम लोग वापस से इस मनी वाले स्टेट पे आ सकते हैं कि भाई और डाल, राइट। तो इस वाले पे एरर में आने की जगह हम लोग मनी वाले को ही बार बार फ्लैश कर सकते हैं। एंड देन यू कैन सेट सम लिमिट ऑल्सो कि भाई अगर 3 बार आ गया ना इस मनी स्टेट पर, तो फिर हम एरर स्टेट में चले जाएंगे। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है। वो आप ग्रेजुअली डिसाइड कर रहे हो, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लॉजिक बनाया कि अगर मनी वाली स्टेट पे 3 बार आ गया लगातार यूजर, ठीक है, पैसे नहीं डाल रहा और स्टिल बोल रहा है कि डिस्पेंस द प्रोडक्ट, डिस्पेंस द प्रोडक्ट, तो विल सिंपली पुट हिम इनसाइड द दिस पर्टिकुलर एरर स्टेट। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो ही कैन कम। इज इट क्लियर एवरीवन? लाइक मैम लिमिट हम यस लोग मैम। उसके ऊपर लगा सकते हैं, इजंट इट? हाँ जी। मैम टेक्निकली ये एरर नहीं हुआ, काइंड ऑफ फेल नहीं, एरर ट्रांजैक्शन हमने है। बना दिया। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा सिस्टम है, हम कैसे भी डिजाइन करेंगे, राइट। अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं नहीं आप लिमिट नहीं लगा सकते हो, तो हम नहीं लगाएंगे। वी विल आस्क हिम ना कि कोई लिमिट है इसके ऊपर या नहीं है। तो सपोज हमने क्या सोचा है कि यहाँ पर डिस्पेंस का एक ऑप्शन है। अगर यूजर बस खेल रहा है मशीन के साथ, तो देखो इस चीज को समझो कि तुम लोग बड़े ही फ्री हो इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो तुम इसमें कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, अपने इंटरव्यूअर से पूछ के ऑब्वियसली। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे एक बटन है, और अगर आपने सपोज यूजर ने सिर्फ 10 रुपए एंटर किया है, तो वो मेरी मशीन को ना मतलब वो ना करे, बिना मतलब के यूज ना करे, है ना, उसको एक्सप्लॉइट ना करे। तो हमें यहाँ पे क्या एक चीज लगा दी कि अगर गलती से हमारा जो मशीन है उसे 3 से ज्यादा बार एक ही यूजर यूज करता है, तो हम उसको एरर वाले जोन में डाल देंगे, एरर वाले स्टेट में हम उसे भेज देंगे वेंडिंग मशीन को, ठीक है। लेकिन यूजुअली इट इज नॉट एन एरर ऑब्वियसली, है ना। अगर आप यूजुअली किसी भी ऐसे टाइप की मशीन को देखोगे तो वो उसे मनी स्टेट में ही रखेगा, मतलब अभी मनी सफिशिएंट नहीं है, बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, यही दिखाता रहेगा। तो कम्प्लीटली योर चॉइस, है ना। कम्प्लीटली योर सिस्टम, यू हैव टू डिजाइन इट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि सफिशिएंट बैलेंस वाला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। हो भी सकता है आप लोग अगर उस तरीके से डिजाइन करते हो, अदरवाइज नॉट रियली नीडेड, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक इज डेफिनेटली एन एरर, ठीक है। हो सकता है आपकी मशीन ही खराब हो गई हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस मैम। रिपेयर में गई हो, राइट। तो मशीन भी रिपेयर में जाती है, राइट। तो हो सकता है कि कोई पार्ट ऑफ द मशीन इज नॉट वर्किंग। तो अगर हमारी, आप लोगों ने देखा है कि जब भी रिपेयर का या फिर आउट ऑफ कैश हो जाता है आपका एटीएम, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि नॉट इन सर्विस, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट मशीन हैज गॉन समवेयर, इट सिंपली मींस दैट राइट नाउ वी आर इन नॉट इन आइडल स्टेट। हम लोग आइडल स्टेट में नहीं है इस टाइम, हम एरर स्टेट में है। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस मैम। यस अच्छा, मैम। एक और चीज, क्योंकि एरर को हम लोगों ने एकदम ही वैसा एकदम एंड वाला एंड गोल बना रखा है, तो ये सफिशिएंट बैलेंस वाले को हम एरर में नहीं डालेंगे। इवन आफ्टर थ्री इवन आफ्टर 3 attempts also will put him in this particular zone only, है ना। और अगर ये हम काम कर सकते हैं इसके साथ कि अगर 3 बार के बाद भी कुछ, अगर हमें ऐसी लिमिटेशन लगानी है, तो अगर 3 बार के बाद भी वो पैसे मतलब बोल रहा है कि प्रोडक्ट दो, तो हम उसको उसके पैसे ही रिफंड कर सकते हैं, भाई तू लेके जा, है ना। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, बट एरर में ज्यादा हो जाएगा, तो एरर में नहीं डालेंगे। एरर इज स्पेसिफिकली फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या रिपेयरिंग में चला जाए, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। और कोई स्टेट जो आप लोग सोच रहे हो दैट कैन कम इनसाइड? एक आइडल स्टेट हो गई वेयर द मशीन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, एक डिस्प्ले वाली स्टेट हो गई वेयर यू आर शोइंग योर आइटम्स, ठीक है। उसके बाद एक हो गई पेमेंट वाली स्टेट इन विच द मशीन इज मेकिंग द पेमेंट्स, नॉट मशीन, यू आर मेकिंग द पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक चेक वाली आप लगा सकते हो स्टेट, जिसमें मशीन इज चेकिंग कि अभी इसको नेक्स्ट स्टेट में भेजना है कि नहीं भेजना है। ऐसी कुछ स्टेट बीच में आ सकती है कि क्या पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है या नहीं हुई है, राइट। एंड उसके बाद डिस्पेंस। तो मतलब ऑल टुगेदर यही 3 4 आपके स्टेट्स हैं। ये सबको समझ में आ रहा है?
यस मैम। राइट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि सर भाई मेरा ना ऐसा कुछ, अब आप लोग, अब हमें ये बेसिकली समझना है कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो हमने अपना एकदम फ्रीली होके एकदम अपने स्टेट्स डिजाइन कर दिया एंड वी आर नाउ आस्किंग द इंटरव्यू। ठीक है कि जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि भाई देखो ये मैंने सिस्टम बनाया है, डू यू थिंक इट इज करेक्ट और एम आई मिसिंग समथिंग? ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ मिस कर रहे होगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, तो सामने वाला कुछ और सोच रहा होगा, आप लोग कुछ और सोच रहे होगे, तो इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल। तो हमें उनसे हमें ये नहीं सोचना कि हम एक बार में करेक्ट सोल्यूशन के ऊपर आ गए। हम उनसे पूछेंगे कि इज इट द करेक्ट सिस्टम, मतलब क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हो कुछ, राइट? सो अगर उनको कुछ इसमें एड ऑन करना होगा तो ही कैन ऐड दैट थिंग टू यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल ही विल से कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ही कैन से कि मल्टीपल प्रोडक्ट है। ठीक है। फिर आपने पूछा कि कॉइन बेस्ड है, कार्ड बेस्ड है, कैसे टाइप का पेमेंट है, तो उसने बोल दिया कि भाई कॉइन बेस्ड बनाओ अभी आप, लेकिन उसको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना, बिकॉज ये आपका LLD का ही कॉन्सेप्ट है कि आपका सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि अगर कोई नए चेंजेस हैं तो वो उन्हें इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो इसीलिए उसके हिसाब से आपको अभी फिलहाल के लिए तो कॉइन बेस्ड सिस्टम यूज करना है, बट लेटर ऑन यू शुड हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम विच कैन मतलब इन सारे चेंजेस को भी दैट कैन कीप विद इट, राइट? तो हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल सा सिस्टम डिजाइन करना है। ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कि क्या ये स्टेट्स करेक्ट हैं। सो वी आर थिंकिंग ऑफ द स्टेट्स लाइक दिस, दीज आर ऑल द स्टेट्स इन विच our system can reside in. They will say कि ठीक है, it looks good, you can go on with it, और otherwise अगर उससे लगेगा कि नहीं कोई changes हो सकते हैं, they'll mention the changes also. For example changes क्या बोल सकता है, बोल देगा कि यार तुम्हारा जो मशीन है ना, एक सिंगल आपका जो एक सिंगल सॉफ्टवेयर होगा ना, it should be able to handle multiple vending machine। अगर उसे कॉम्प्लिकेट करनी होगी चीजें तो ऐसे करके कुछ बोल देगा। ठीक है, कि आप किस तरीके से फिर ऑपरेट करोगे, हाउ योर वेंडिंग मशीन्स आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, वो बताओ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चरल चेंज है, बट अभी हमें देखने में ऐसा लगेगा दैट ऑल राइट व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो इस चेंज के बारे में भी बात करेंगे बाद में। सो दीज आर लाइक स्पेसिफिक चेंजेस दैट कैन कम। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है दैट दिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड और समथिंग लाइक दैट? एनीथिंग? ऑलराइट, सो वी आर गुड टू गो विथ, है ना, दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्ट। तो अब देखो अब क्या होता है कि हमने अपना सिस्टम फाइनलाइज करा लिया। अगर उसे कोई भी चेंजेस करवाने होते तो वो हमें बता चुका होता, अब उसे नहीं कराने, तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई आप करो इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले व्हाट आई विल डू इज कि मतलब व्हाट इज बेटर फॉर मी इज पर्सनली कि मैं ना सबसे पहले उसको एक बार ना इसका कंट्रोल फ्लो भी बना के दिखा दूंगी। देख, कंट्रोल फ्लो बनाने से ये फायदा होगा कि एक बार अगर मेरी स्टेट्स और उसका दिमाग साथ में मैच कर गया, देन इट विल बी सिंपल फॉर मी टू राइट द, अगर मुझे कोई कोड वगैरह लिखना भी पड़े तो इट विल बी सिंपलर फॉर मी टू राइट दैट कोड एज वेल। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि अब आपके साथ अगर कोई 6-7 घंटे गुजार रहा है, सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यू टू इम्प्लीमेंट द कोड एज वेल। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है कोड की तो कंट्रोल फ्लो, क्लास डायग्राम्स, राइट, ये सारी चीजें ना बड़ी अच्छे से आप लोग पहले से ही तैयार करा के चेक करा लो, ताकि बाद में कोई चेंजेस का या बाद में कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर लाइक अ कंट्रोल फ्लो, मतलब उसका डायग्राम बना के उसे चेक करवा लो, लाइक क्लास डायग्राम बना के उसे चेक करवा लो। उसमें कोई भी चेंजेस अगर होंगे, ये जो हम लोगों ने बेसिक इंटरप्रिटेशन में वी हैव मिस्ड, तो वो वहां पे वो चेंजेस बता देता है। क्लियर है बच्चों ये? इज इट यस क्लियर मैम। एवरीवन? राइट। तो हमने बोला कि यस ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द क्लास डायग्राम एंड देन विल ड्रॉ द कंट्रोल फ्लो, या फिर पहले आप लोग कंट्रोल फ्लो बना लो फिर क्लास डायग्राम बना लो, एज वॉट एवर यू नीड, राइट? तो सबसे पहले कंट्रोल फ्लो पे आ जाते हैं। तो हमने बोला कि यार एक स्टेट हमारी क्या हो सकती है, वी हैव टू लाइक डिजाइन इट इन द वे कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करना चाह रहे हैं इसकी, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आगे चल के हम करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हम लोग अपने कंट्रोल फ्लो को सोचेंगे। तो हमने बोला सबसे पहली कौन सी स्टेट है जिसमें हमारी मशीन रहती है। तो सबसे पहली स्टेट है कि वो आइडल स्टेट में रहती है, दैट इज वो कुछ नहीं कर रही होती। ठीक है।
अब आइडल स्टेट में जाकर हम उससे बोलते हैं कि सबसे पहला काम क्या किया था बच्चों हमने? आइडल स्टेट से विच इज द नेक्स्ट स्टेट दैट वी कैन गो इनसाइड? डिस्प्ले स्टेट, डिस्प्ले डिस्प्ले। जी डिस्प्ले स्टेट या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट, जो भी आप उसका नाम रखना चाहो। ठीक है, सो मैं डिस्प्ले ना कह के प्रोडक्ट सिलेक्शन बोल देती हूँ, बिकॉज वो पैसे भी उसी डिस्प्ले पे दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, सो इसको हम बोल देते हैं कि ये कौन सी स्टेट है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट। फ्रॉम हियर, अब यहाँ से ना दो तीन सिनेरियो बन सकते हैं। क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं? प्रोडक्ट सिलेक्शन, अगर सपोज हमने किसी भी प्रोडक्ट को करेक्टली सिलेक्ट कर लिया, तो हम लोग चले जाएंगे किसी और स्टेट पे, दैट वुड बी प्रोडक्ट सेलेक्ट। अगर सही से हो गया तो क्या कौन सी स्टेट आएगी? पेमेंट मैम। पेमेंट वाली स्टेट, दैट इज हम लोग इसे बोल देते हैं कि फुल पेमेंट स्टेट बोल देते हैं कि क्या फुल पेमेंट हो गई है, राइट? इस स्टेट के अंदर हम लोग आ जाएंगे अगर सही से प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर हो चुका है। अगर फुल पेमेंट नहीं हुई है, राइट, या फिर हम बोल देते हैं पेमेंट स्टेट। ठीक है, फ्रॉम पेमेंट स्टेट वी विल चेक कि क्या फुल पेमेंट हो गई है, राइट? अगर हमें पता चलता है कि फुल पेमेंट नहीं हुई है, देन विल अगेन गो टू दिस पेमेंट स्टेट। तो ये वाला जो लूप हमें वहां पे परेशान कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो हम लोगों ने यहाँ से चेक कर लिया है कि अगर फुल पेमेंट हो गई है तो आगे जाओ, वरना तो फिर वापस पीछे आओ और पेमेंट करवा लो पहले। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन से और कौन कौन सी स्टेट्स निकल के आ सकती हैं? अगर गलती से सपोज यूजर ने पहले ही कॉइन डाल दिया, दैट इज आइडल स्टेट से अगर यूजर पेमेंट स्टेट में चला जाएगा, यूजर तो पागल होता है। ठीक है, ये हमें एकदम ध्यान में रखना है दैट यूजर इज नॉट लाइक सेन, है ना? तो वो कुछ भी काम कर सकता है, तो आइडल स्टेट से बोलेगा मुझे तो पेमेंट करनी है। तो आपको इसके बाद क्या करना चाहिए बच्चों? अगर वो पेमेंट करने के लिए आता है, देन व्हाट शुड वी डू? फ्रॉम आइडल स्टेट ही इज डूइंग दिस, मैम उसको मतलब ब्लॉक करके वापस से प्रोडक्ट सिलेक्शन पे भेजना पड़ेगा। राइट? या तो आप उसे मना कर दो कि भाई तुम पेमेंट कर ही नहीं सकते, राइट? दैट इज आप उसे वापस से एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, दैट इज आप उसे रिफंड करा दो, तो एक रिफंड की स्टेट बना सकते हो। अदरवाइज एक सिंपल फंक्शनैलिटी बना सकते हो पेमेंट के अंदर ही, राइट? तो हम बोलेंगे कि भाई रिफंड करो एंड देन अगेन गो टू दिस आइडल स्टेट बेस्ड ऑन की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। अगर सपोज ये वाला जो पेमेंट वाला ब्लॉक है, ये पहले पूछता है कि क्या आप पेमेंट करने जा रहे हो, राइट? व्हाट इट मीन्स इज, आप इस स्क्रीन को ऐसे समझना कि ये इसकी आइडल स्टेट है और यहाँ पर दो बटन्स बने हुए। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, राइट? इसमें एक है प्रोडक्ट सिलेक्शन और एक है पेमेंट। अब अगर दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है, और आपको सिलेक्शन का चॉइस है, और आपने सपोज चूज कर लिया पेमेंट, राइट, लेकिन अभी आपने पेमेंट की नहीं है, यू हैव जस्ट सिलेक्टेड पेमेंट, तो ऐसे केस में तो आप आइडल स्टेट में डायरेक्टली आ सकते हो। पर अगर आपका सिस्टम है कॉइन बेस्ड सिस्टम, इसका मतलब है आपको कोई स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही है, आपने डायरेक्टली कॉइन डाल दिया है, तो ऐसे केस में पहले आप रिफंड स्टेट में जाओगे। जब रिफंड प्रोसेस हो जाएगा, देन यू विल गो टू द आइडल स्टेट। इज इट क्लियर? सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सिस्टम दैट यू आर डिजाइनिंग। एंड ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन क्लियर करेगा? आपका इंटरव्यूअर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। राइट? ये यही क्वेश्चन होते हैं जो हमें पूछने होते हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बोलेगा कि नहीं नहीं, ये कॉइन बेस्ड सिस्टम नहीं है, या फिर बोलेगा नहीं नहीं ये कॉइन बेस्ड सिस्टम ही है। तो वो दोनों चीजों को आपको क्लियर करके बता देगा, राइट? देन द नेक्स्ट थिंग वुड बी, अब रिफंड हो गया, आइडल स्टेट में आ गए, देन आइडल स्टेट से फिर से प्रोडक्ट सिलेक्शन में आए। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन में कुछ गलत हो सकता है इस टाइम? हो सकता है, क्या हो सकता है? मैम जैसे मैम रॉन्ग अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट। सिलेक्शन चेंज करना हो। प्रोडक्ट सिलेक्शन में ये गलत हो सकता है। तुम सोचो, तुम्हारे पास ये स्क्रीन थी, तुम लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्शन को क्लिक किया, तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है? अब एक जगह कोक बना हुआ है, एक जगह कुछ और बना हुआ है, एक जगह कुछ और, एक जगह कुछ और। अब इसमें गलत क्या जा सकता है? या तो रॉन्ग डिस्प्ले प्रोडक्ट गलत हो मैम। रहा है। रॉन्ग आउट ऑफ प्रोडक्ट तो कुछ स्टॉक होता का ही नहीं है केस ना। जा सकता है मैम। आउट ऑफ स्टॉक का केस जा सकता है, आउट ऑफ दैट इज स्टॉक हो सकता है। आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, एब्सोल्युटली। तो वो एरर वाली स्टेट को हमने इन्हीं दोनों के लिए डिफाइन किया था कि भाई तुमने जो मांगा है वो हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे कहाँ भेज देंगे? हम बोलेंगे अब एरर वाले में ही भेज देंगे, बिकॉज
अब यहाँ पे एरर को पहले डिफाइन करना पड़ेगा दैट एरर कर क्या क्या रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम आउट ऑफ स्टॉक ही लिख लेते हैं, यहाँ पे अलग स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बोल दिया आउट ऑफ स्टॉक, राइट। ठीक है, और सो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है एक वापस से आउट ऑफ स्टॉक को हम आइडल स्टेट में लेके जा सकते हैं, इजंट इट? कि भाई ये वाला जो तूने आइटम यस सेलेक्ट मैम। किया वो तो हमारे पास नहीं था, अब तू फिर से आ जा, फिर से अपना प्रोसेस फिर से शुरू कर ले। तो वो फिर से आपको लेकर आ जाएगा आइडल स्टेट में, और वहां से आप प्रोडक्ट सिलेक्शन को क्लिक कर दोगे एंड देन अगेन आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो आपको अपने कोक के बारे में पता चल चुका है कि वो तो आउट ऑफ स्टॉक है, तो अब आप उसे क्लिक ही नहीं करोगे। अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो फिर से वो आपको आउट ऑफ स्टॉक में लेके चला जाएगा, एंड वहां पे एक बटन होगा कि फिर से इनिशिएट करना है प्रोसेस को या नहीं करना है, उसके बेसिस पे आइडल स्टेट आ जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको यहाँ पे बटन नहीं रखना है तो खुद कुछ टाइम में कुछ वेब पेजेस आपके रिफ्रेश हो जाते हैं, तो वो वाली फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो देयर। इज इट क्लियर एवरीवन? मैम अगर हम आउट ऑफ स्टॉक वाली चीजें यूजर को डिस्प्ले ही ना करें, फिर इस स्टेट की नेसेसिटी नहीं होगी। तो फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अगर वो रिफ्रेश, मतलब इसका ना एक फायदा होता है आउट ऑफ स्टॉक दिखाने का, कि यूजर को ना आप एक मैसेज दे रहे हो तो वो यूजर उसे फिर से सिलेक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए हम उसको इस स्टेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आप मैम। उसे डायरेक्टली आइडल स्टेट में भेज दोगे तो चला तो आप सकते हो क्योंकि आपका सिस्टम है, तो आप लोग कर सकते हो ये काम। ठीक है, लेकिन फिर आपका यूजर है ना, उसको या तो खुद समझ में आ जाएगा फिर वो सिलेक्ट नहीं करेगा। मतलब इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आप अपने इंटरव्यूअर से पूछना कि आउट ऑफ स्टॉक वाली स्टेज रखनी है या नहीं रखनी है, पर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने कोक को सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर आपको ये स्क्रीन बीच में दिखानी है, दैट इज सेकेंड स्क्रीन, अगर आपको ये दिखानी है कि आपने जो भी सिलेक्ट किया था इट वाज आउट ऑफ स्टॉक, तो इस स्टेट को बनाओ। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये दिखनी ही नहीं चाहिए स्टेट, ठीक है, रिफ्रेश 5 मिनट में हो 2 मिनट में हो, वी डोंट वांट इट, तो आप डायरेक्टली आइडल स्टेट में भी लेके जा सकते हो, जहां पे आप अपनी ब्रांड का नाम या कुछ भी दिखाते हो, दैट इज योर आइडल नेम, आइडल स्टेट। क्लियर है बच्चों ये? नो मैम, मैं क्या कह रहा था, लेट्स से हमारा कोक आउट ऑफ स्टॉक है, तो कोक को एज अ प्रोडक्ट में डिस्प्ले ही ना करूँ अवेलेबल आइटम्स में इन द प्रोडक्ट सिलेक्शन पेज, सो वो आउट ऑफ स्टॉक वाली स्टेज मेरी कभी आएगी नहीं फिर। आउट ऑफ स्टॉक वाली स्टेज फिर भी आ सकती है, कभी कभी क्या होगा कि आपके पास कोई भी आइटम नहीं है, राइट? तो अच्छा, यहाँ पे एक एरर वाला भी बना लेते हैं स्टेट। तो अगर हमारे पास कोई आइडल स्टेट में से अगर हमारा जो इन्वेंट्री है वो खाली हो जाती है, तो हम उसे एरर स्टेट में भेज देंगे। उसमें भी तो आउट ऑफ स्टॉक चली जाता है, तो उसको हम आउट ऑफ स्टॉक में भेज देंगे। ठीक है, एरर में हम बस मेंटेनेंस के टाइम पे भेजेंगे कि भाई अगर कुछ मेंटेनेंस वाली बात आ रही है तो इस एरर स्टेट में या मेंटेनेंस स्टेट में डाल दो। क्लियर है? अभी ठीक है? यस मैम। ऑलराइट। सो फुल पेमेंट के बाद अच्छा एक और स्टेट थी जो हमने मिस कर दिया, कि अब यहाँ पे आप लोग जितना कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितना बड़ा स्टेट डायग्राम बनाना है, तो कितनी कवरेज रखनी है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी आंसर्ड बाय योर इंटरव्यू। इससे कोई सही और गलत आंसर नहीं होता, कोई आपको बहुत ही कम स्टेट्स में डिफाइन करके दे देगा सब कुछ, कोई आपको बहुत ज्यादा स्टेट्स में डिफाइन कर देगा। इट इज जस्ट अबाउट दैट हाउ मच क्लियर पिक्चर आर यू पीपल हैविंग ऑफ योर सिस्टम। तो जितनी क्लियर पिक्चर, जितना अच्छे से आप उस सिस्टम को जानते हो, उतनी ज्यादा स्टेट्स आप उसकी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फुल पेमेंट अगर किसी ने कर दिया है, ठीक है, फुल पेमेंट कर दिया, तो फिर डिस्पेंस करो आइटम। ठीक है, अब हो सकता है कि डिस्पेंस करते टाइम ही आपका जो वो प्रोडक्ट है वो जैम हो गया, अब डिस्पेंस से कुछ निकला ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको किस में डाल देंगे, हम इसको एरर स्टेट में डाल देंगे। अब भाई तूने पैसे दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन तेरा जो आइटम है वो नहीं निकला है, तो अब तू जाके अपनी मेंटेनेंस टीम से बात कर, वो तुझे निकाल के देंगे। अदरवाइज आप लोग क्योंकि ऑटोमेट करना चाहते हो ज्यादातर चीजों को, तो आप इसे रिफंड स्टेट में भी डाल सकते हो कि कोई आइटम तो निकला नहीं, तो लो रिफंड और तुम जाओ यहाँ से। समझ में आ रही है बात? अगेन अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर इंटरव्यू। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम। एंड दिस इज यस मैम। दिस और ऐसा नहीं है कि आप लोग हर क्वेश्चन एकदम से पूछ रहे हो। ठीक है, वो आप एक बार में दिखाओगे अपना स्टेट डायग्राम, और वो खुद बता देगा कि व्हाट इज नॉट वर्किंग। आप उसे एक्सप्लेन करोगे एंड मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली ही विल टेल यू। ठीक है, तो आपको बार बार नहीं जाना है, यू हैव टू फाइंड, मतलब एक बार अपना सिस्टम डिजाइन करना है एंड देन यू हैव टू शो हिम कि भाई ये हमने सोचा है, आप हमें बता दो कि इज इट करेक्ट और नॉट। इफ दिस इज हाउ वी हैव डिजाइंड आवर सिस्टम, इसमें कुछ रह गया है
हाँ, डिस्पेंस स्टेट के बाद भी वापस से कौन सी स्टेट में आ जाना चाहिए हमें? आइडल स्टेट में, कि भाई अब तुम्हारा आइटम ये वाला तो डिस्पेंस हो गया, नाउ लेट अस अगेन मूव टू द आइडल स्टेट। ठीक है, और कुछ आउट ऑफ स्टॉक से जब रिफिल स्टेट मतलब रिफिल हो जाएगा, देन अगेन यू आर गोइंग टू कम टू द आइडल स्टेट। तो इसीलिए ये वाला एरो हमने यहाँ पे लगा रखा है, राइट। सो और कोई एरर स्टेट का काम मेंटेनेंस होगा तब एरर आ सकता है, अदरवाइज फुल पेमेंट। अदरवाइज सपोज अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गई, तो एरर स्टेट तो कहीं से भी जा ही सकता है। ठीक है, सो देयर कैन बी मल्टीपल केसेस इन विच एरर स्टेट कैन बी रीच्ड। ठीक है, आई थिंक दैट वी हैव मेड ऑलमोस्ट द कंप्लीट structure, and I think that it is clear as well, everyone. Is it clear or not? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का everyone? अब बात आ जाती है क्लास डायग्राम की। ठीक है, अब आप लोगों ने इतनी सारी स्टेट्स बना ली है, राइट। अब इनसे तो कोड तो लिखने नहीं वाले हो आप लोग, आपको कोड लिखने के लिए तो एक्चुअल में क्लासेस वगैरह बनानी पड़ेंगी, बट अब आपको अपने सिस्टम की कुछ स्टेट्स जरूर पता चल गई हैं, जो कि हैं, आप लोग इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। तो एक आपकी स्टेट है आइडल स्टेट, ठीक है। एक आपकी स्टेट थी प्रोडक्ट सिलेक्शन वाली स्टेट, राइट। प्रोडक्ट सिलेक्शन, या फिर आप ऐसे बोल दो हैज प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये देखो हम कैसे सोच रहे हैं इन स्टेट्स के नाम। तो हमारे पास है एक वेंडिंग मशीन, ठीक है। वेंडिंग मशीन इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी इन डिफरेंट स्टेट। तो आइडल स्टेट के अंदर वेंडिंग मशीन रह सकती है। फिर एक वेंडिंग मशीन का स्टेट आ सकता है जिसमें आइटम सेलेक्ट हो रखा हो, तो एक स्टेट का नाम आप रख सकते हो आइटम सेलेक्टेड, राइट। एक स्टेट जिसमें आपकी वेंडिंग मशीन रह सकती है इज सपोज क्या नाम रखें इसका, इज पेमेंट, इज पेमेंट मेड तो नहीं, बट वेंडिंग मशीन इज पेमेंट सक्सेसफुल। सक्सेस वाला तो बाद में आएगा, पहले उसे क्या कहते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग। आ गई, इज पेमेंट डिस्प्लेड, है ना। तो ऐसा कुछ रख देते हैं इसका नाम। नाम आप लोग अपने हिसाब से अच्छे अच्छे रख लेना, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि वेंडिंग मशीन किस किस स्टेट में रह सकती है। ये इज पेमेंट डिस्प्लेड, ये एक स्टेट हो सकती है। उसके बाद दूसरी स्टेट हो सकती है कि पेमेंट प्रोसेस हो गई क्या, है ना, तो पेमेंट प्रोसेस्ड स्टेट, ठीक है। ये वाला नाम थोड़ा चेंज कर लेना। उसके बाद और क्या स्टेट होती है, तो एक एरर स्टेट हमने डाली हुई थी, राइट। एरर से पहले ये डिस्पेंस वाली स्टेट थी एक। सो एक है आपकी कि आपने अपना आइटम जो है वो डिस्पेंस कर दिया है, तो वेंडिंग मशीन इज इन डिस्पेंसिंग स्टेट, और डिस्पेंसिंग से फिर से आइडल स्टेट में आ जाती है। देन एक होती है स्टेट जिसके अंदर रिफंड प्रोसेस होता है, तो उसको या तो आप लोग रिफंड प्रोसेस को हम पेमेंट डिस्प्लेड, और रिफंड अगर हमें स्टेट बनानी होगी तो विल सी टू इट। ठीक है, अभी मुझे ये 5 स्टेट्स दिख रही हैं, और एक थी हमारी आउट ऑफ स्टॉक वाली स्टेट, तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेट, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, और एक थी हमारी एरर स्टेट। तो these were all the states in which our vending machine can live, right, can be मतलब जिसमें वो रह सकती है। Is it right or not, everyone? ma'am. It is correct, right? अब हम लोग एक एक करके ना डिफाइन करते हैं that how does this now whole thing works together. So सबसे पहले तो आप लोगों को, जब आप लोग क्लास डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे या फिर अपना कोड लिखने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले आपको इसे ओओडी के हिसाब से देखो, जरा ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन सबको सोचने की कोशिश करना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? फिजिकल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट दिखे वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है? Vending machine. वेंडिंग मशीन वेंडिंग दिख रही है। मशीन, इसका राइट, तो इसका मतलब है सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा बन गया वेंडिंग मशीन। ठीक है, अब आगे चल के हमने एक और चीज बोली थी कि मल्टीपल वेंडिंग मशीन भी हो सकती हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, राइट। लेकिन ये वेंडिंग मशीन, जैसे हम लोग हैं,
ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सी स्टेट में रह सकते हैं, तो आप बोलोगे कि हम लोग हंस सकते हैं, हम लोग रो सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं फील कर रहे होते हैं, कभी 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 हम रो रहे होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट स्टेट्स इन विच वी लिव, राइट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे और हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थी। उसी तरीके से ये वेंडिंग मशीन है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेट आई, एक एक इसकी स्टेट आई आइडल स्टेट। ठीक है, अब हम वेंडिंग मशीन और आइडल स्टेट के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। सो वेंडिंग मशीन ने ये डिफाइन कर दिया कि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन को जब हम बनाने बैठे, तो ये थी हमारी क्लास वेंडिंग मशीन। इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही चाहिए, इंस्टेंस चाहिए ही चाहिए, सो दैट्स वाई इसको हमने क्लास बना रखा है। तो दिस इज आवर वेंडिंग मशीन। हमने बोला कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो आप लोग बोलोगे यार एक तो हमें स्टेट चाहिए ही चाहिए, राइट। मतलब व्हाट इज द करंट स्टेट इन विच इट इज, तो स्टेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है स्टेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं ये भी कहीं पर होनी चाहिए, राइट। सेकंड चीज जो हमें वेंडिंग मशीन के लिए चाहिए होगी, दैट वुड बी कि आपने कितने पैसे डाले हैं, अमाउंट, इजंट इट। ये डिस्क्राइब करेगा कि नहीं करेगा, वेंडिंग मशीन के किसी स्टेट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। करेगा, राइट। पेमेंट तो स्टेट एक, को अफेक्ट करेगा। हाँ मतलब पेमेंट वाले को भी करेगा, और वो जो एक होता है कंप्लीट वाला, वो एक होता है प्रोसेसिंग वाला, तो वो दोनों स्टेट्स को, एक होता है प्रोसेसिंग वाला, एक होता है कि कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई है, राइट। कौन सी वाली स्टेट है कि कंप्लीट वाली स्टेट में जब वो जाता है, वो पेमेंट सक्सेसफुल वाली स्टेट में जाता है, तभी वो डिस्पेंस करना शुरू करता है। तो दोनों स्टेट्स को, चलो सेकंड वाली स्टेट तो फर्स्ट वाली स्टेट बुला लेगा, पर फर्स्ट वाली जो स्टेट है विच इज कि क्या पेमेंट डन हो गई है, उसको अमाउंट इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। और क्या चीज है जिसके ऊपर हमारा वेंडिंग मशीन विल बी डिपेंडेंट? Product. वेंडिंग मशीन ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट ऑल्सो, है ना, कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट हैं, ये उनके क्या क्या प्राइसेस हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर ये वेंडिंग मशीन डिपेंडेंट है, राइट। तो स्टेट है, अमाउंट है, प्रोडक्ट है, प्राइसेस है, राइट। अब हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। सो वेंडिंग मशीन की सबसे पहली फंक्शनैलिटी है कि वो कौन सी स्टेट में जाएगी, सबसे पहले कौन सी स्टेट में जाएगी? आइडियल। आइडल स्टेट में जाएगी। आइडियल स्टेट में, राइट। तो हमने बोला कि ये है इसकी करंट स्टेट, और करंट स्टेट में हमने डाल दिया कि ये तुम गए हो आइडियल स्टेट में। इसका मतलब आइडियल स्टेट इन इटसेल्फ इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कौन एंटर कर रहा है, जिसके अंदर वेंडिंग मशीन एंटर कर रही है। और अदरवाइज यू कैन से जैसे ह्यूमन के साथ हमने इसको पैरेलली इसको कंपेयर किया था कि ये ह्यूमन है और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रह सकता है, तो उसी तरीके से ये वेंडिंग मशीन है और ये डिफरेंट स्टेट्स में रह सकती है। तो करंट स्टेट जिसके अंदर ये है वो है आइडियल स्टेट, ठीक है। अब आइडियल स्टेट क्या क्या डिफाइन करती है? आइडियल स्टेट के अंदर मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगी, प्रॉपर्टीज वगैरह। इसको स्टेट की जरूरत है या नहीं है? तो मैं नहीं है। तो आइडियल स्टेट को क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं? हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर स्टेट? प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं अभी उसमें? प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है वेंडिंग मशीन के अंदर। एनीथिंग एल्स? इसके लिए आप लोग यहाँ पर जाओ ना पीछे, ये देखो। अब आपको आपको ये देखना है कि आइडियल स्टेट में कैसे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे देखो आइडियल स्टेट में कैसे पहुंचते हैं, यहाँ से सोचो। तो ये थी आपकी वेंडिंग मशीन, ये सबसे पहले आइडियल स्टेट में खड़ी हुई है। तो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज दैट इट कैन यूज इन ऑर्डर टू मूव टू सम डिफरेंट स्टेट? प्रोडक्ट सिलेक्शन और पेमेंट। तो सबसे पहला तो प्रोडक्ट सिलेक्शन दिख रहा है। तो एक एक जो मूवमेंट हमें दिख रहा है आइडल स्टेट से, वो दिख रहा है कि आप यहाँ से सिलेक्ट सम प्रोडक्ट, ठीक है, सिलेक्ट सम प्रोडक्ट। जैसे ही आप इस फंक्शन को चलाओगे, दैट इज आपकी वेंडिंग मशीन थी, आपने वेंडिंग मशीन को आइडल स्टेट में डाला,
और वहां से यूजर ने बोला कि वेंडिंग मशीन के अंदर हमें ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट डालना है, ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट, उसने बोल दिया कोक। जैसे ही आइडल स्टेट को कोक मिला, तो क्या उसे अपनी स्टेट चेंज करनी चाहिए या नहीं? यस मैम। ठीक है, स्टेट चेंज कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे जो वेंडिंग मशीन थी, यस मैम। उसके पास एक स्टेट नाम का वेरिएबल था, ठीक है, स्टेट नाम का उसके पास एक वेरिएबल था जिसमें हमने आइडल डाल दिया था। ये सेम स्टेट वेरिएबल हमने किसको पास कर दिया? स्टेट वेरिएबल, ठीक है, उसने कोई नया चीज नहीं बनाया है आइडल ने, ठीक है, उसके पास इसी का एक्सेस है, ठीक है, इसी सेम वेरिएबल का एक्सेस है। आइडल बोलता है कि मैं ना अब इसके अंदर, बिकॉज आई हैव टू डू द ट्रांजिशन, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इसी स्टेट वेरिएबल को चेंज करके आई एम गोइंग टू पुट इनसाइड इट, कौन सी स्टेट थी हमारे पास सेकंड, क्या नाम रखा था? प्रोडक्ट सिलेक्शन। आइटम प्रोडक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन है ना? स्टेट। तो अब हम कौन सी स्टेट में चले गए हैं? आइटम या प्रोडक्ट सिलेक्शन, इस पर्टिकुलर स्टेट में चले गए हैं। तो अब वेंडिंग मशीन को क्या पता चल रहा है वो कौन से स्टेट में है? प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट में है। सही है बच्चों? यस मैम। सही है, राइट? सबको समझ में आ रही है ये वाली बात? इज इट करेक्ट और नॉट? यस मैम। इट इज करेक्ट, राइट? अब हम लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्शन, जब हम फेज में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूजर, अब यूजर बोलेगा कि ठीक है, अब मैं वेंडिंग मशीन के ऊपर सपोज प्रोडक्ट सिलेक्शन पेज पर हूँ, तो मैं एज अ यूजर मैंने सोचा कि चलो पैसे डालने की कोशिश करते हैं। इस चीज को समझना है, सपोज मैं कॉइन्स को डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी स्टेट प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट थी तो अभी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर यही सेम काम मैंने आइडल स्टेट में किया होता, दैट इज मेरी स्टेट होती है आइडल और मैं इसमें कॉइन्स डालने की कोशिश करती, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? हमने क्या बोला था? अगर आइडल स्टेट में कोई पैसे डालेगा तो क्या होगा? फंड होगा। हाँ, हमने बोला रिफंड था स्टेट में जाता हूँ। एग्जैक्टली तो हमने बोला था कि अगर सपोज आइडल स्टेट के पास हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया, दैट इज पुट सम कॉइन्स, ठीक है, मतलब ऐसे ही हम कुछ भी फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, पुट सम कॉइन्स, ठीक है। अब पुट सम कॉइन्स क्या बोलता है कि अगर मेरे पास पैसे आए, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? आइडल स्टेट की बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं पुट सम कॉइन्स नाम का फंक्शन है, अगर इसके अंदर पैसे आए तो हम क्या करने वाले हैं? स्टेट को किसके अंदर डाल देंगे? रिफंड स्टेट के अंदर। तो अब रिफंड आइडल से स्टेट। हम चेंज होके कहाँ पे चल गए हैं? रिफंड स्टेट के अंदर। अगर ये फंक्शन आइडल स्टेट के अंदर से कॉल होता है तब रिफंड स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन वहीं, अब देखो इस वाले केस की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला ना, ये भी एक स्टेट थी हमारी, ये थी हमारी स्टेट नंबर 1, दिस वाज आर स्टेट नंबर 2, दैट वाज प्रोडक्ट सिलेक्शन, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर भी दिस इज ऑल्सो अ क्लास बेसिकली, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस तो हो ही सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक फंक्शन था जिसका नाम था पुट सम कॉइन्स। अब ये पुट सम कॉइन्स जब इस फंक्शन के अंदर आया, इज इट गोइंग टू वर्क फाइन हियर और नॉट? प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर आई एम आस्किंग यू पीपल कि सपोज वेंडिंग मशीन की जो करंट स्टेट होती है वो रिफंड ना होकर प्रोडक्ट सिलेक्शन होती, ठीक है, और मैंने अब इस वेंडिंग मशीन के अंदर कुछ कॉइन्स डाले होते, तो पुट सम कॉइन्स, यही सेम फंक्शन चलता विच इज पुट सम कॉइन्स, ठीक है। तो नाउ आई एम आस्किंग यू पीपल कि क्या प्रोडक्ट सिलेक्शन में अगर पुट सम कॉइन्स चलता तो वो वैलिड होता? यस मैम। यस मैम, फिर वैलिड वो है। वैलिड होता, फिर वो वैलिड होता, बिकॉज क्यों? क्योंकि इस बार आपने स्टेट चेंज कर दी, ठीक है, इस बार आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट रखी हुई है, सो दैट्स व्हाई पुट सम कॉइन्स इज वैलिड हियर। बट पुट सम कॉइन्स इन दिस आइडल स्टेट वाज नॉट वैलिड, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप फंक्शन ही नहीं बनाओगे, फंक्शन आप बनाओगे, बिकॉज वो काम किया जा सकता है, फंक्शन डिफाइंस द वर्क, राइट, तो वो वर्क किया जा सकता है वेंडिंग मशीन पर, बट इट इज गोइंग टू गो इनटू दिस रिफंड स्टेट, so that's why we have written this thing, right? अब नेक्स्ट, अब जब अगर सपोज ये प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट है आपकी और इसके अंदर आपने पुट सम कॉइन्स वाला फंक्शन चलाया, तो देन द सेकंड स्टेट इन विच यू कैन गो इज, अब स्टेट क्या चेंज हो सकती है? व्हाट स्टेट कैन वी सेलेक्ट नाउ? पुट सम कॉइन्स अगर चल गया प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर, तो कौन सी स्टेट थी बच्चों नेक्स्ट? पेमेंट। डिस्पेंस। पेमेंट स्टेट। मेक पेमेंट पेमेंट। प्रोसेसिंग वाली, है ना, कि मतलब करेक्ट पेमेंट पूरी हो गई है नहीं हुई है, वो वाली एक स्टेट आई थी, राइट। तो हमने सपोज बोल दिया कि थर्ड स्टेट जो है
वो हमारी पेमेंट रिलेटेड स्टेट है, ठीक है। अगर पेमेंट रिलेटेड स्टेट है तो इसके अंदर ये भी एक क्लास है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन स्टेट। तो हम बोल रहे हैं कि क्या इसके अंदर पुट सम कॉइन्स होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि क्या पता आपने पूरे कॉइन्स ना डाला हो। अभी हम बहुत ही सिंपल सिस्टम की बात कर रहे हैं, कॉइन बेस्ड। क्या पता आपने सारे कॉइन्स ना डाल रहे हो, अभी आपके सिर्फ 20 ही रुपए बन रहे हो, तो क्या पेमेंट के अंदर पुट सम कॉइन्स आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। और ये किसके अंदर लेकर जाएगा आपको? फिर से पेमेंट के ही अंदर लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम अब बार बार चेक करेंगे कि क्या पूरी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर इज फुल पेमेंट मेड ऐसे करके हमने कोई फंक्शन बनाया, और अगर इसका आंसर आ जाता है ट्रू कि यस पूरी पेमेंट हो चुकी है, तो हम लोग स्टेट को चेंज करके क्या कर देंगे? डिस्पेंस स्टेट में चेंज कर दें। डिस्पेंस स्टेट में चेंज कर देंगे। तो नाउ द स्टेट विल बिकम हियर, मतलब ये ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है वेंडिंग मशीन की स्टेट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड, है ना। सो अब ये वाली ऑटोमेटिकली Yes. जो स्टेट है वो बन चुकी है डिस्पेंसिंग वाली जो स्टेट थी, ठीक है। अब फोर्थ स्टेट आ गई विच इज डिस्पेंस स्टेट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने जो वो वाले फंक्शंस हैं जो सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए हैं वो ही लिखे हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने अपना पूरा कंट्रोल फ्लो बना रखा है तो वी कैन राइट अदर स्टेट्स एज वेल, अदर फंक्शंस एज वेल इन दीज स्टेट्स, ठीक है। तो डिस्पेंस स्टेट में आप लोग आए। अब इसके अंदर आप खुद ही सोचो कि अगर इसके अंदर पुट सम कॉइन्स की जरूरत है। मैम वन नो क्वेश्चन। मैम। है, बिल्कुल है, नो क्यों मैम, नहीं है? नहीं हेलो देखो है। डिस्पेंसिंग के इस टाइम पे भी तो कॉइन्स डाल सकता है ना यूजर, तो आप रिफंड स्टेट में तब भी जा सकते हो। हाँ जी, प्लीज पूछो। मैम, ये पूछना था कि जैसे पेमेंट में अगर वो यूज़र एक्स्ट्रा कॉइन्स ऐड कर दे खुद से गलती से, तो रिफंड वो भी होना चाहिए ना पेमेंट में? अगर यूजर पेमेंट, लाइक वैसे तो यूजर टेन, ऐसा, हाँ नहीं लाइक वैसे 10 रुपीज़ है, हाँ तो हम्म तो वैसे तो यूजर ऐसा करता नहीं है, पर इसको आप लोग दो तीन तरीके से हैंडल कर सकते हो। एक तो आप उसे क्या बोल सकते हो, या तो रिफंड कर दो, ठीक है, ये मतलब कंप्लीटली अगेन इट इज योर चॉइस। या तो आप उसे रिफंड कर दो, या फिर आप उसे नेट बैलेंस दिखा दो और उसे बोल दो कि क्या तुझे और कुछ खरीदना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा बच्चों? यस। तो ये तुम्हारा पूरा कॉल है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर सपोज बोलता है कि और थोड़ा डेप्थ में जाओ और थोड़ा अच्छा बनाओ, तो इसके अंदर चले जाना, अदरवाइज बोल देना कि रिफंड स्टेट में लेके चले जाओ। ये दिस इज योर चॉइस, है ना। वो डिस्प्ले वाली जो स्टेट है, शो क्या था वो शो, अभी हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है उसके हिसाब से तो रिफंड स्टेट में जाना चाहिए। बट अगेन दैट इज ऑल्सो योर कॉल कि आप उसे किस तरीके से रिफाइन करना चाहते हो, ठीक है। रिफाइनमेंट क्योंकि चलता रहेगा पूरे टाइम। क्लियर है बच्चों? ओके मैम। एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट। तो हम लोग अभी हैं डिस्पेंसिंग वाले स्टेट में, है ना। सो डिस्पेंस वाले स्टेट में अगर फिर से वो यूजर वो कॉइन्स डाल देता है तो अगेन योर कॉल, रिफंड में ले जाओ या फिर उसे बाद में दिखा देना। तो ये कंप्लीटली आप लोग खुद डिसाइड करोगे। द सेकेंड थिंग इज, और किस स्टेट में जा सकता है डिस्पेंस से? तो अब हम लोगों ने सपोज हमने एक फंक्शन बना लिया है इस डिस्पेंस स्टेट के अंदर, डिस्पेंस द आइटम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये फंक्शन चलता है तो इसका मतलब है कि वेंडिंग मशीन उस पर्टिकुलर आइटम को निकाल देगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डिस्पेंस द आइटम के टाइम पे कुछ तो एरर जनरेट हो गया, ठीक है। एरर जनरेट हो गया इन द सेंस कि वो वही वाली बात कि वो जाम हो गया या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वट एवर द केस वॉज, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ से इफ एल्स लगा के भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू से डिस्पेंस वाला चल रहा था, डिस्पेंस द आइटम अगर सक्सेसफुली चल जाता है तो आप स्टेट को चेंज करके कर देना आइडल, ठीक है। दैट इज कि हम वापस से फर्स्ट स्क्रीन पर आ फर्स्ट गए, स्टेट। राइट। लेकिन अगर कोई एरर आता है, अब एरर का टाइप क्या है वो अगेन आपको रिफाइनमेंट देगा। तो अगर एरर का टाइप है कि आपके पास आइटम है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक, तो आप लोग आउट ऑफ स्टॉक वाली स्क्रीन पे इस स्क्रीन पर जा सकते हो। देन उसके अंदर जितने भी कॉइन्स हैं वो दिखा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर ये आइटम नहीं है तो फिर से उसे डिस्प्ले वाली स्क्रीन पर लेके जा सकते हो, एंड यू कैन आस्क कि भाई अब कुछ और सेलेक्ट कर ले इसकी जगह, ये तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। या फिर आप उसे एरर वाली स्टेट पे जा सकते हो। देन अगेन योर कॉल। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। सबको क्लियर है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर? यस मैम। Yes, ma'am. यस। सो लेट अस डू वन थिंग।
आप लोग एक काम करके दिखाओ मुझे, आप लोग मुझे इसका एक क्लास डायग्राम बना के दिखा सकते हो, बिकॉज आई थिंक दैट यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर। सो व्हाट आई नीड इज कि आप इस पूरे डायग्राम को देखते हुए जस्ट इसके एट्रीब्यूट्स, मतलब इसके प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज एक बार मेंशन करके दिखा दो कि वेंडिंग मशीन के पास क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब क्लास डायग्राम यू हैव टू मेक, है ना। फिर उसका कनेक्शन कैसा है, 1 to 1 है, मैनी टू वन है, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इज इट कैरिंग with other classes, other states. So this is what I want from you first, and उसके बाद I'll discuss. तो पहले आप लोग 10 minutes ले लो, you try to make this out, and then we'll see to it कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितना simple है। चलेगा everyone? ओके मैम। ओके एक बार मैम। ट्राई करो, है ना, सब लोग एक बार ट्राई करो, then we'll see to it. Now you people also have to think about कि अगर कोई इंटरफेसेस वगैरह हम बनाना चाहें, कैन वी डू दैट, कि किस तरीके से क्लासेस को आर्किटेक्ट करना है, वो सब कुछ सोचना। देन विल बिगिन विद द कोडिंग पार्ट एज वेल। चला हेल्प, या मैं वेट करूं 5 मिनट? बच्चों, Ma'am, we are trying, ma'am. ऑलराइट, मैं 5 मिनट वेट कर रही हूँ, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, फिर हम लोग साथ में कोड करते हैं।
हुआ बच्चों? मैम हमें जब चेंजेस रिटर्न करने होंगे, इन केस कोई चेंज बच गया हमारे पास, तो उसमें भी तो एरर आ सकता है। उसमें क्या एरर, अगर उसमें भी एरर आया सपोज, तो फिर टेक्निकल टीम के ही पास जाना पड़ेगा, तो उसे एरर स्टेट में ही डाल देना सीधा। फिर उसका कुछ हम कर नहीं पाएंगे अगर उसके बाद भी एरर आ गया तो। जैसे मेट्रो स्टेशन पर होता है ना कि कुछ अगर ज्यादा ही एरर आ जाए तो टेक्निकल टीम हैज टू ओपन द मशीन, तो फिर वो वाला केस अगर हो गया तो फिर एरर स्टेट में डाल दो। बच्चे विजुलाइज कर पा रहे हो आप लोग? हाँ या ना बोलो। यस और नो? यस मैम। बाकी बच्चे? Yes, ma'am. शैल आई यस हेल्प मैम। यू पीपल, या रुकूं मैं थोड़ी देर, या हेल्प करूं? ये तुमने ये जो ब्लू कलर से ये जो किया है, ये क्यों किया है? अब इसे हटाना कैसे है ये बताओ। यहाँ से हटेगा क्या? हाँ। ऑलराइट, सो आप लोग करते रहो, है ना? तो इसी तरीके से देयर आर मेनी मेनी अदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम जिनको हमें एक एक करके देखना होता है। एंड जब हमें फिर इंटरव्यू कुछ भी डिफरेंट भी पूछेगा ना, तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस उससे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने हैं, एकदम शांत दिमाग से, है ना? एंड क्योंकि हम लोग काफी सारी प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे, तो उस टाइम तक आप लोग काफी ज्यादा प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो यू हैव टू बी जस्ट लाइक, आपको आंसर करने के लिए बस कामनेस रखनी है अपने अंदर, नथिंग एल्स। ठीक है, देन यू कैन थिंक अबाउट ऑल द स्टेट्स दैट आर पॉसिबल। ठीक है, सो इट इज जस्ट अबाउट कि व्हाट ऑल डिफरेंट स्टेट्स अ सिस्टम कैन गो इनसाइड। उसी के बेसिस पे आप बेसिकली अपना पूरा आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हो। और भी कई सारी चीजें हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे, बट दिस वाज अ वेरी simple kind of implementation, simple kind of a system, not a very simple as well, but एक मीडियम लेवल का आप इसे क्वेश्चन मान सकते हो। दूसरे वाले जो सिस्टम, मतलब जो जितना सोचने में डिफिकल्ट होता है उतना ही ज्यादा उसे हार्ड बोलते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल। ठीक है, सो हो सकता है कि उसका जो क्लास डायग्राम हो वो काफी सिंपल हो। इट इज जस्ट अबाउट कि आप उससे कितना क्लियरली सोच पा रहे हो सिस्टम के बारे में, ऑन लोअर लेवल एंड ऑन हायर लेवल। ठीक है, तो दोनों चीजें यूजुअली फ्रेशर्स के साथ लोअर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस सी द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो मुझे पूरी इम्प्लीमेंटेशन एज सच नहीं देखनी है, मुझे बस अपनी क्लासेस वगैरह को डिफाइन करके एक बार समझना है, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग। सो
अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़े कल को, तो विल आई बी एबल टू डू दैट और नॉट, राइट? So that is my motive. So suppose this is my folder vending machine, ठीक है, VM कर देते हैं इसका नाम. So suppose ये हमारी vending machine का folder है और इसे open कर लेते हैं हम लोग. All right. So now let us see here what are different things we require here. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता ही है, कौन सी क्लास होगी सबसे पहले? वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन, वेंडिंग राइट? मशीन क्लास। बिकॉज सबसे पहली जो मशीन जिसके बारे में हम सोच पा रहे थे अपने पूरे आर्किटेक्चर में, वो वेंडिंग मशीन ही थी. तो सबसे पहले उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की फिर हम डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे. बट सबसे पहली क्लास वुड बी योर वेंडिंग machine only. Okay, so this is our class. Vending machine. ठीक है, और ये हो गई हमारी वेंडिंग मशीन. और वेंडिंग मशीन किस किस स्टेट में रहती है? तो एक स्टेट हो जाएगी आपकी, दिस इज वेंडिंग मशीन. एक हो जाएगी आपकी स्टेट, सबसे पहली स्टेट कौन सी थी? प्रोडक्ट सिलेक्शन. प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट वाज देयर, है ना? सो प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट. उसके बाद एक स्टेट थी हमारी आइडल स्टेट, आइडल डॉट जावा. एक स्टेट थी हमारी रिफंड स्टेट, रिफंड डॉट जावा. और क्या स्टेट थी बच्चों? प्रोडक्ट सिलेक्शन, रिफंड, आइडल. पेमेंट प्रोसेसिंग। पेमेंट हो डिस्पेंस गया स्टेट एक, थी। डिस्पेंस हो गया एक, डिस्पेंस स्टेट, डिस्पेंस. ठीक है, उसके बाद एक आप लोग बोल रहे हो पेमेंट वाला, रिफंड हो ही गया है. उसके बाद एक था आउट ऑफ स्टॉक, वो भी एक हमारी स्टेट थी, आउट ऑफ स्टॉक डॉट जावा. एक लास्ट हमने एरर स्टेट भी बना रखी थी, एरर तो स्टेट। एरर स्टेट डॉट जावा. एंड ठीक है, और उसके बाद एक मेन फंक्शन तो चाहिए ही, जो बेसिकली मतलब हमारा जो ऑपरेशन जहाँ से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा. तो ये है वो मेन फंक्शन. अब हमने सबसे पहला काम क्या किया, यहीं से शुरू करते हैं. तो हमने सबसे पहला काम किया कि हमने वेंडिंग मशीन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ठीक है, सो वेंडिंग मशीन VM इज इक्वल्स टू न्यू वेंडिंग मशीन, राइट? तो जब आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपकी वेंडिंग मशीन वाला जो क्लास है, उसको देखकर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. तो इसके अंदर आपने बोला कि यार ये वेंडिंग मशीन है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रह सकती है. ये कौन कौन सी स्टेट्स में रह सकती है आपकी वेंडिंग मशीन? वेंडिंग मशीन, ये इसका कंस्ट्रक्टर है. और इसके पास हमने बोला था कि एक स्टेट नाम का तो वेरिएबल होना ही चाहिए. सो प्राइवेट, प्राइवेट स्टेट इज स्टेट, स्टेट इज इक्वल्स टू. तो सबसे पहले ना इसके एक स्टेट बना लेते हैं. ये स्टेट मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्लासेस विल रिक्वायर सेम नेम्स ऑफ द फंक्शंस. अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने जब ये डिजाइन हम लोग कर रहे थे, तो उस टाइम हमने बोला था कि ये जो एक फंक्शन था, राइट, जिसका नाम था सेलेक्ट प्रोडक्ट या फिर पुट सम कॉइन्स. जो पुट सम कॉइन्स ही है सपोज,
तो हमने बोला था कि अगर हमने सपोज आइडल स्टेट के अंदर चला दिया तो कैसे चलेगा, ठीक है, एरर स्टेट के अंदर चला दिया तो कैसे चलेगा। तो हर एक के अंदर वो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा था। बट क्योंकि हम अलग अलग नेम्स नहीं चाहते, हम थोड़ी सी सिंक्रोनाइज रखना चाहते हैं इन सबको, सो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग वन इंटरफेस ऑल्सो जिसका नाम है स्टेट इंटरफेस। ठीक है, तो स्टेट इंटरफेस जो है वो बोलता है कि मैं हूं एक इंटरफेस और मेरे अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है पब्लिक। रिटर्न ये कुछ नहीं करता है, इसका नाम है पुट सम मनी। ठीक है, उसके बाद इसने डिफाइन तो इसे किया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक इंटरफेस है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, तो वेंडिंग मशीन ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, इसने आइडल स्टेट ने आइडल जो हमारी क्लास है उसने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, मतलब क्योंकि वो स्टेट इंटरफेस है तो जितने भी स्टेट्स हैं सबने स्टेट वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब सबके पास सेम नाम के फंक्शंस होने वाले हैं। स्टेट कहाँ पे, आइडल स्टेट ये रहा। तो आइडल क्लास बोलता है कि मैंने किसको इम्प्लीमेंट किया है, मैंने इम्प्लीमेंट किया है किसको बच्चों, किसको, स्टेट को किया है इम्प्लीमेंट। स्टेट को इम्प्लीमेंट किया है, राइट। तो स्टेट को अगर इम्प्लीमेंट किया है तो कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, पुट सम मनी फंक्शन। सम मनी, एब्सोल्युटली। सो ऐसे आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं होती, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सो स्टेट के अंदर हम गए और हमने बोला पुट सम मनी फंक्शन। तो अगर आइडल स्टेट के अंदर चल गया सपोज, तो ये क्या करेगा, ये है आपका पब्लिक वॉइड पुट सम मनी फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, अगर पुट सम मनी फंक्शन आइडल स्टेट के अंदर चल जाता था तो हम क्या बोल रहे थे, क्या करेगा, कौन से स्टेट में चला जाएगा, रिफंड स्टेट में चला जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है सपोज, तो आप दिस डॉट स्टेट के अंदर डाल देना रिफंड स्टेट, राइट। सो अब रिफंड स्टेट डालने के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पहले आइडल डॉट जावा को खुला रखते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन को बंद कर देते हैं, स्टेट को भी बंद कर देते हैं। वेंडिंग मशीन हमें चाहिए, रिफंड हमें नहीं चाहिए, डिस्पेंस बाकी आप लोग क्योंकि कर लोगे, बस एक फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसी तरीके से कोई एग्जाम्पल मल्टी थ्रेडिंग का भी उठा लेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये सो वेंडिंग मशीन को हमने यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बनाया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बोला कि देखो आपके पास ना एक आइडल स्टेट होगी, वेंडिंग मशीन को हम बोल रहे हैं, तो हम लोग उसे बना लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट एंड देन स्टेट प्राइवेट प्राइवेट आइडल इज इक्वल्स टू, दैट्स इट। ठीक है, और इसको किस वाले इसके अंदर रख लेते हैं, इस इंटरफेस के अंदर रख लेते हैं आइडल को। एंड देन वी आर सेइंग कि जब भी वेंडिंग मशीन आएगी ना तो सबसे पहले स्टेट को इनिशिएट कर देना। मतलब जब भी कोई वेंडिंग मशीन खड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके पास 5 स्टेट आ ही जाएंगी, ये जितनी भी स्टेट हैं 6-7 स्टेट, वो सारी की सारी उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, कभी वेंडिंग मशीन आइडल में रहा करेगी, कभी आउट ऑफ स्टॉक में रहा करेगी, लेकिन सारी की सारी स्टेट उसके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा सारी की सारी स्टेट को एज सुन एज द वेंडिंग मशीन का कंस्ट्रक्टर विल अपीयर। क्लियर है ये पॉइंट। यस मैम। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली आइडल, सारी की सारी ऑल द स्टेट्स, अभी मैं बस आइडल को कर रही हूँ बट यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द टास्क। हम बोल रहे हैं ऑल द स्टेट्स नीड्स टू बी देयर, नीड्स टू बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, एज सुन एज दिस वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट। तो ये वाला काम हम इधर करेंगे, इंस्टेंशिएशन का काम। ठीक है, और उसके बाद द फर्स्ट स्टेट इन विच दिस मशीन शुड लिव वुड बी स्टेट दिस डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू, मतलब अभी करंट स्टेट क्या है, जब वेंडिंग मशीन स्टार्ट हुई है तो हम बोल रहे हैं द करंट स्टेट इज आइडल स्टेट। इज इट करेक्ट और नॉट। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, हमने वेंडिंग मशीन को यस आइडल मैम। स्टेट के अंदर डाल दिया है, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि अब मेन फंक्शन क्या काम करेगा, अब हमारा यूजर तो यहाँ पर खड़ा है, तो मेन फंक्शन बोलेगा कि वीएम को
एक फंक्शन दैट इज पुट सम मनी नाम का एक फंक्शन है, वो चलाने के लिए बोल दो। तो पुट सम मनी नाम का एक फंक्शन है, उसको चलाने के लिए बोल दो, किसको, वीएम को। ठीक है, और पुट सम मनी में सपोज हमने बोल दिया कि कुछ आप लोग इंटीजर वैल्यू भी पास करते हो, तो वो भी हमने पास करा दी। तो अब वीएम के पास भी ये फंक्शन तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन वीएम के पास ये फंक्शन है नहीं, ये फंक्शन है इसके आइडल के पास। सो अब हम बोल रहे हैं कि सपोज पुट सम मनी फंक्शन अगर वीएम को मिलता है विच इज void एंड विच इज हैविंग इंटीजर नंबर सपोज, तो इसे क्या करना चाहिए, इसे यहाँ से कॉल कर देना चाहिए। अभी करंट स्टेट कौन सी थी, स्टेट दिस फंक्शन डॉट। को कॉल कर। तो ऑटोमेटिकली पुट सम मनी फंक्शन किसका कॉल हो जाएगा, क्योंकि दिस डॉट स्टेट के अंदर आइडल है, तो हम बस सिंपली यहाँ से बोल देंगे दैट दिस डॉट फंक्शन तो कॉल होगा ही यहाँ पे, मेन फंक्शन पुट सम मनी। हम यहाँ से बोल देंगे स्टेट डॉट पुट सम मनी को कॉल कर दो एंड पास दिस 10 एज वेल। ठीक है, अब स्टेट, अब इसको आप लोग ऐसे समझना, अब स्टेट के अंदर जो भी स्टेट होगी वो अपने पुट सम मनी फंक्शन को कॉल कर देगी। ये चीज समझ में आई यस एवरीवन? मैम। यस मैम। राइट। तो अब आइडल के पास, अब क्योंकि आइडल स्टेट भी हो सकती है, मतलब मुझे हमें बस यही समझनी थी चीज। ठीक है, अब जैसे हमने आइडल स्टेट बनाई है, अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर एक सपोज डिस्पेंस या फिर दूसरी स्टेट बना लेते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक और वेरिएबल हो सकता है इसके पास, होगा ही ऑब्वियसली, विच इज प्राइवेट स्टेट, और इस स्टेट का नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट। ठीक है, अब जब आपका वेंडिंग मशीन बनेगा तब ये वाली स्टेट भी ऑटोमेटिकली अराइज होगी ही होगी। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर है आपके पास दिस डॉट दैट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट भी हमने इनिशियलाइज करके तो रख ही दिया। राइट, उसके बाद क्या बोलता है, अब ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने वहां पे इंटरफेस को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, पर बन जाएगा वो। राइट, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि पुट सम मनी, अगर सपोज करंट स्टेट आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन है और तब पुट सम मनी कॉल हुआ है, मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन का पुट सम मनी कॉल हुआ है तो ठीक है। लेकिन अगर करंट स्टेट आपकी आइडल है और पुट सम मनी कॉल हो जाता है, देन इट इज रॉन्ग। राइट, तो हम यहाँ पर यही चीज बोल रहे हैं, दैट इज स्टेट के अंदर बस हम एक और चीज बोल देते हैं कि इसके अंदर एक इंट मनी टाइप का भी कुछ आने वाला है, इंटीजर टाइप का भी कुछ आने वाला है। एंड नाउ वी आर सेइंग कि अगर आइडल स्टेट में पुट सम मनी कॉल हो रहा है, ठीक है, दैट इज इंट मनी, देन विल सिंपली यहाँ से विल पुट इट इनटू आइडल स्टेट में ही रहने देंगे, लेकिन हम यहाँ से एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, सपोज अभी फिलहाल के लिए, कि रॉन्ग फंक्शन कॉल और समथिंग। ठीक है, अदरवाइज आप लोग रिफंड स्टेट में डाल देना रॉन्ग फंक्शन। राइट, एंड आइडल स्टेट के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर अगर सपोज हम लोग करंट स्टेट जो हमारा है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट, दैट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन, करंट स्टेट हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर बना दिया है एंड देन पुट सम मनी को कॉल होता है, तो इस बार कौन सा स्टेट पुट सम मनी को कॉल कर रहा है, प्रोडक्ट सिलेक्शन। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन बोलेगा कि मेरे लिए तो ये करेक्ट फंक्शन है, मैं तो इसे चला सकता हूँ, क्योंकि ये हमने अपने स्टेट स्पेस डायग्राम, अपने जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अंदर हमने ये बोला था कि ये स्टेट इसके लिए एकदम सही है। सो इट इज इम्प्लीमेंट्स स्टेट। ठीक है, अब इसके पास भी आ गया है पुट सम मनी फंक्शन, तो यहाँ पे ये बोल देगा कि अब ये वाला चल सकता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेक्ट स्टेट। ठीक है, अब उसके बाद आप उसको नेक्स्ट स्टेट में लेके जाओगे, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू, है ना। सो अब अगर आप इसे रन करा के देखते हो, सपोज आप मेन फंक्शन में हो एंड यू आर पुटिंग सम मनी एंड यू आर रनिंग इट। ठीक है, क्योंकि करंट स्टेट आपकी है क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दी थी अभी करंट स्टेट। सो हमने बना दी थी करंट स्टेट, कहाँ गई, हमने बना दी थी करंट स्टेट प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट, इसलिए वो बोल रहा था कि सही है, ठीक है, आपने सही काम किया है। लेकिन अगर मैं अपनी करंट स्टेट को आइडल स्टेट रखती हूँ, दैट इज
I am saying that suppose this is not the current state in which my machine is. मेरी मशीन की जो current state है, this dot state is equals to ideal state है. और अब मैं अगर इस फंक्शन को रन करती हूँ, इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो बोलते हैं रॉन्ग फंक्शन कॉल. ठीक है, फिर आपको कैसे चेंज करना है दैट यू अंडरस्टैंड, राइट? तो मेन चीज यही थी किस तरीके से हम मूव करना चाहते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यूजिंग दिस कंप्लीट आर्किटेक्चर. इज इट क्लियर एवरीवन? कैन यू नाउ मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट? अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ. Can you now make these all functions, different functions that each state can operate upon, और उसके बाद किस तरीके से move करना है from one state to another state? Can you do that? Yes, ma'am. कैसे करोगे? अब आप सिंपली क्या बोल दोगे? स्टेट डॉट, सॉरी, स्टेट इज इक्वल्स टू, क्या डाल दोगे इसमें? दिस डॉट स्टेट क्या हो जाएगा? अगर सपोज पुट सम मनी चल गया है, तो सपोज हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर, ठीक है? और प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर आराम से स्टेट वगैरह काम कर चुका है. देन व्हाट डू वी हैव टू डू? हाउ टू मूव द स्टेट? This dot state is equal to दिस डॉट स्टेट इसके पास कहाँ से आएगा? सुपर का यूज करना होगा मैम, फिर अगर हमें लिखना है एक्सेस या तो आप लोग इसके साथ स्टेट पास सुपर कर दो. डॉट स्टेट का. इसका सुपर इसने इम्प्लीमेंट किया है स्टेट को, है ना? मैम इसका तो नहीं मैम, सुपर हम एक फंक्शन को सैंपल मेथड बना सकते हैं. वेंडिंग मशीन के पास अलग स्टेट है, ठीक है? तो आप उसे पास कर दो यहाँ पर. अब जब आप पास करोगे तो रेफरेंस ही तो चेंज करना है, आराम से करो फिर. तो ऐसा आप लोग आराम से स्टेट चेंज कर सकते हो. तो स्टेट, सपोज यहाँ से हम बोल देते हैं दैट स्टेट, एंड ये हम इसके अंदर क्यों पास कर रहे हैं? इस नीचे वाले फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं. सो मैम एक यहाँ से सेटर हमने मेथड भी तो बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? सेटर. हाँ, वो सब तो कर लोगे ना तुम लोग. सेटर, गेटर, वो सब कुछ बनाओ. मैं तो बस ये कैसे स्टेट से स्टेट चेंज हो रही है वो बता रही थी, दैट्स इट. बाकी तो तुम लोगों को स्टेट बनाना को ही पड़ेगा. हाँ, स्टेट को अगर मैम हम स्टैटिक मान ले तो फिर तो हम लाइक जहाँ पर चाहे वहीं पर उसे यूज कर पाएंगे. अगर उसे स्टैटिक लेके हम वो कर ले तो स्टेट को. स्टेट को स्टैटिक लेने से क्या फायदा होगा? हाँ, मतलब आप एक ही उसका क्लास की हेल्प इंस्टेंस से यूज बनेगा कर ऐसा सकते कुछ? वैसे भी एक ही बार वैसे भी एक ही बार तो क्रिएट कर रहे हैं, उसे बार बार क्रिएट भी कब कर रहे हैं? ये तो मैंने बस इतना सा चेंज कर दिया है, बस इंटरफेस में भी यही जाके डाल देते हैं. और अब आप लोग आराम से इस स्टेट को घुमाते रहो यहाँ से वहां, राइट? तो अब हम बोल रहे हैं कि आइडल में स्टेट आ गया है और रॉन्ग फंक्शन था, इसीलिए हम एस को किस पर सेट कर देंगे? फिर से हम बोल रहे हैं कि एस को सेट कर देंगे वापस से आइडल स्टेट पे. अब आइडल तो लेकिन वहीं पर है, यहीं से लेकर आने पड़ेंगे. दिक्कत बस इतनी सी है. देखो कैसे सेट करेंगे. ये जो मशीन है ना, इसी को बोलेंगे भाई मशीन सुन, तू अगर किसी और स्टेट में जा रही है तो अपनी ये वाली जो वैल्यूज है ना, इनको हमें पास करना पड़ेगा इसे. ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेट है, आइडल स्टेट है, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज विच वी हैव टू सेट एवरी टाइम. तो अब हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं दैट वी आर पासिंग द स्टेट ऑल्सो, एंड देन वी आर पासिंग, सपोज पुट सम मनी है, तो हमें कौन कौन सी स्टेट्स पास करनी पड़ेंगी? द करंट स्टेट, एंड देन दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू आइडल विल नॉट वर्क. हम वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट ही पास जो कर दें, वेंडिंग मशीन के पास तो सब कुछ है, तो हम यहाँ से दिस पास कर देते हैं. सही है कि नहीं बच्चों? ये समझ में आ रही है बात? यस मैम. हाँ. यस तो मैम. अगर नहीं समझ में आया तो बस इतना सा काम किया कि दिस पास करने से ये फायदा होगा कि हमें ये वाली चीजें भी चाहिए थी. तो हम बोलेंगे कि यहाँ से स्टेट नहीं बल्कि वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट पास होगा. ठीक है, और अब आप लोगों का सारा काम हो जाएगा, बिकॉज दिस टाइम यू आर गेटिंग वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट. अब आप बोल दो कि एस डॉट, अब एस के पास तो है वो सारी चीजें. किस चीज की बात हम लोग कर रहे थे? अब क्योंकि वो चीज प्राइवेट है तो उसके लिए आप लोगों को गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि गेट
आइडल स्टेट, तो वहां से वो क्या रिटर्न करेगा, आइडल स्टेट का ऑब्जेक्ट, एंड देन यू कैन सेट इट ओवर हियर. आई होप दैट दिस इज क्लियर, राइट? इट इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल. कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? वो प्राइवेट चीजें हैं तो इसीलिए गेटर सेटर्स होने जरूरी हैं, राइट? यस मैम. ठीक है, उसके बाद बस वही करना है कि एस डॉट गेट दिस, मतलब गेट आइडल स्टेट, और उसको निकाल लेना और उसको डाल देना, जिसके मतलब जो एस डॉट स्टेट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर डालना है. बस इतना सा चेंज है कि अब आपको स्टेट और आइडल स्टेट डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपके पास गेटर और सेटर होनी चाहिए. दैट इज द चेंज दैट यू हैव टू लुक आफ्टर, राइट? और कुछ बात नहीं है, बस इसको इम्प्लीमेंट करके ले आना कल तक. आप लोगों के पास टाइम है इसको इम्प्लीमेंट करने का? टाइम है अभी कि नहीं? कर लोगे? ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोग इसे कर लोगे. एक बार आप लोग इसके साथ बैठना, ठीक है? अगर कोड चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे मांग लेना, वैसे तो मुझे नहीं लगता चाहिए होगा. मैम और फिर एक हम लोग क्वेश्चन कल. था. हाँ. मैम जैसे आपने पूरी वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर दिया एक स्टेट के लिए बस, राइट? तो मैम ये काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को वायलेट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक स्टेट चेंज करने के लिए आपने पूरी वेंडिंग मशीन पास की. तो ऑल्टरनेट वे हम ये कर सकते हैं कि हम एक स्टेट्स का अलग क्लास बनाए जिसमें वो पांचों के पांचों स्टेट्स हों और सिर्फ वो स्टेट वाली क्लास पास करें, क्योंकि ग्लोबली यूनिक ही रहेगी. मैं बताऊं, इसमें वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट पास करने से ये फायदा होगा कि इफ मल्टीपल मशीन्स वुड बी देयर इन द सिस्टम, राइट? मतलब अगर एक सपोज मॉल है और उसके अंदर 5-6 वेंडिंग मशीन्स हैं, एंड हमें उसे एक ही जगह से कंट्रोल करना है, राइट? मतलब एक एडमिन पैनल है, वहां से हमें सब कुछ उसका देखना है, दैट व्हाट करंट स्टेट इज इट इन, राइट? अभी क्या करंट काम हो रहा है, सपोज समथिंग लाइक दैट. सो वेंडिंग मशीन के जगह कुछ और भी हो सकता है, एस्केलेटर्स हो सकते हैं, राइट? वी कुड हैव लिफ्ट्स आल्सो. तो इससे ये फायदा होगा कि यू जस्ट हैव टू क्रिएट लाइक डिफरेंट डिफरेंट वीएम्स ऑब्जेक्ट, है ना? और अब आपके पास डिफरेंट वेंडिंग मशीन्स तैयार है, तो इसीलिए वेंडिंग मशीन का ऑब्जेक्ट पास करना वुड बी सिंपल. अगर आप लोग इसे ऐसे सोचोगे कि हम लोग इसे स्टैटिक बना लें, तो स्टैटिक तो फिर सबके लिए ही सेम हो जाएगा ना, हर एक वेंडिंग मशीन के लिए. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दूस थिंग्स. कोई आप लोगों ने ऐसा कुछ बोला था ना कि वेंडिंग मशीन में एक स्टेट स्टैटिक रख लें, तो फिर वो एक ही वेंडिंग मशीन के लिए काम कर पाएगी चीज. यस मैम. तो हाँ. ये भी आप लोग अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि कितने कितने सिस्टम्स एक साथ होने वाले हैं जिन्हें हम कंट्रोल करने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन टॉक टू हिम अबाउट, है ना? ये पॉइंट क्लियर है, अभिषेक? यस मैम. ओके. सो एक बार आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करके देखना, राइट? देन विल गो फर्दर. चलेगा? ओके मैम. यस। ऑलराइट, चलो ओके ठीक है मैम. गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल कोई और फिर अकॉर्डिंगली ही, मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ देखते हैं. अच्छा, राइट? बस आप लोग इसको एक बार इम्प्लीमेंट करना, सो दैट आप इंटरव्यूअर के सामने थोड़ा डरो ना while implementing the big लॉजिक्स. तो उसके लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो डू दिस फॉर श्योर, है ना? चलो, गुड नाइट गाइस, एंड टेक थैंक यू केयर. मैम. Thank you, ओके, ma'am. बाय बाय. थैंक यू मैम.